morning to all of you. Welcome to my YouTube channel Paramount English Study with Rajan sir. Here I have brought here new topic, new video for you. This is the topic actually very interesting. So let's see here what is the topic of the day. Hello viewers, welcome to my YouTube channel Paramount English Study with Rajan sir. Myself Dr. Rajan Kumar Srivastava. First I will request you to subscribe my channel please and press bell icon so that all my videos notification you may receive first. So let's start here. Poem from your humble book Childhood. First introduction to the poem. Childhood poem has been composed by Marcus Nathan. Here introduction. Childhood means bachpan. Childhood is the golden period of life. A child is close to God or an angel. The reasons are obvious. He is simple and carefree. He has not been corrupted by the wicked ways of the world. He is innocent and lovable. It is a fashion to regret the loss of childhood. In this very simple poem, the poet longs for the revival of childhood. He is fed up with the evil symptoms of growing up. As the child grows in years, in body and mind, he loses his simplicity. So here we shall study here poem stanza by stanza. First stanza, let's start. When did my childhood go? Was it the day I ceased to be 11? Was it the time I realized that hell and heaven could not be found in geography and therefore could not be? Was that the day? Here the poet wants to explain. कहते हैं कि मेरा बचपन कब ख़त्म हो गया? क्या उस दिन मैं वयस्क हो गया था, एडल्ट हो गया था, जब मैंने 11 वर्ष की आयु कंप्लीट कर ली थी? मेरे सोचने तथा समझने तथा प्रश्न पूछने की जो मेरी बुद्धि थी अब वो डेवलप हो गई थी। शायद उस समय मैं एडल्ट हो गया था, या जब मुझे ये पता चला कि स्वर्ग और नरक, हेवन और हेल में कोई भौगोलिक अस्तित्व इसका तो प्रमाण नहीं है और ये तो काल्पनिक ही प्रतीत होते हैं। क्या शायद उसी दिन मेरा बचपन पीछे छूट गया और मैं फिर वहाँ से यंग हो गया? Next stanza. When did my childhood go? Was it the time I realized that adults were not all they seemed to be? They talked of love and preached of love, but did not act so lovingly. Was that the day? अब यहाँ पर पोएट कहते हैं पता नहीं किस मोड़ पर, टर्निंग पर उस समय मेरा बचपन पीछे रह गया और मैं जवान हो गया। शायद उस समय वह परिवर्तन हुआ जब मैंने देखा कि वैसे वास्तव में तो सीधे साधे या बड़े सज्जन नहीं होते जैसे वो दिखते हैं। वे बातें तो प्यार की करते हैं, उपदेश भी वही देते हैं, पर स्वयं नफरत में डूबे रहते हैं। प्यार भरा आचरण करते नहीं वो। शायद तभी मैं बुद्धि से वयस्क हो गया था, क्योंकि ये बात मेरी समझ में आने लगी थी। नेक्स्ट स्टैंजा. When did my childhood go? Was it when I found my mind was really mine to use whichever way I choose, producing thoughts that were not those of other people but my own and mine alone? Was that the day? अब पोएट कहते हैं कि किस मोड़ या समय पर मेरा बचपन पीछे छूट गया और मैं इस दुनिया में दुनियादारी में पड़ गया, सीख कर बड़ा हो गया। क्या वह उस समय हुआ जब मैं ये महसूस कर लिया कि मेरे पास अब अपना मस्तिष्क, अपना विचार है जिसको मैं स्वयं उपयोग कर सकता हूँ, अपनी इच्छा अनुसार मैं कर सकता हूँ। मैंने लोगों की बातों पर विश्वास न करते हुए स्वयं अपनी मौलिक एवं स्वतंत्र चिंतन, फ्री थॉट पर अपने बिलीव करने लगा। शायद प्रॉब्ली यही हो सकता है कि उस दिन से मेरा जो जीवन था उसमें परिवर्तन आ चुका था। नेक्स्ट स्टेंजा लास्ट. When did my childhood go? It went to some forgotten. Where did my childhood go? It went to some forgotten place that's hidden in an infant's place. That's all I know. अब देखें इसके पहले जो भी स्टेंजा आया है स्टार्ट हुआ है when से, ये लास्ट का 4 स्टेंजा स्टार्ट हुआ है where से। अब तक पोएट कहता था मेरा बचपन कब जो है बीत गया, अब ये कह रहा है कि मेरा बचपन कहाँ चला गया। Where did my childhood go? It went to some forgotten place that's hidden in an infant's face. That's all I know. या पोएट यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं कि मेरा जो बचपन था, चाइल्डहुड, कब मुझसे बिछड़ गया, अभी तक ये था और कहाँ छूट गया ये, या तो मैं निश्चित रूप से नहीं बता सकता, पर वह अब कहाँ पर छिपा बैठा है, कहाँ पर मैं उसकी झलक पा सकता हूँ, यह मैंने सोच लिया है।
वह तो ऐसे स्थान पर चला गया है जिसकी याद भी मुझे अब नहीं है। वह तो बच्चे के चेहरे में छिपा हुआ है। यानी कि अब किसी इनोसेंस के छोटे से बच्चे को अगर आप देखो तो उसमें अब वो शायद अपना चेहरा दिखेगा, वो अपना बचपन शायद दिख सकता है। आप जानते हैं कि बचपन के बारे में कवियों ने, शायरों ने बहुत बड़ी बात। जगजीत सिंह का एक गज़ल कि दौलत भी ले लो, शोहरत भी ले लो, चाहे मगर छीन लो, कहा गया है ना, दौलत भी ले लो, शोहरत भी लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, पर लौटा दो मेरे बचपन का सावन को, कागज़ की कश्ती हो बारिश का पानी। तो इस प्रकार के गज़ल भी लोगों ने लिखे हैं बचपन को लेकर कि बचपन कितना अनमोल, कितना गोल्डन, कितना वैल्यूएबल, कितना सिग्निफिकेंट, कितना एंजॉयबल होता है। इसको आज तक कोई कंपेयर नहीं कर सका है। ये अपने आप में गोल्डन है, अपने आप में डायमंड है। तो इसको कहते हुए पोएट कहता है कि बच्चे के चेहरे में ही मेरे अपने बचपन का प्रतिबिंब दिखता है। मैं तो बस इतना ही कह सकता हूँ, मैं बस इतना ही जानता हूँ। तो सो द पोएट सीम्स टू बी डिसअपॉइंटेड बट ही आल्सो finds no satisfaction in at all. Actually, he thinks that his golden childhood has gone forever. Okay, we have completed here poem. I hope all of you have understood this poem. Thank you.